Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel, Unique Classes. I'm going to create a YouTube channel for class 11th and 12th, especially in subject botany. And today I'm going to discuss the biological classification for class 11. Okay. So first of all, we have to define this biological classification. So biological classification is the scientific procedure of arranging of organisms, arranging of living organisms into groups and subgroups. Okay, so बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली होता क्या है? ये एक प्रोसीजर है, साइंटिफिक प्रोसीजर, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया जाता है बहुत सारे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में. ओके, अब क्या जरूरत पड़ी हमें जो है क्लासिफाई करने की? सो द बेसिक पर्पज इज टू मेक द स्टेटस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी क्लियर. सो वी हैव टू अरेंज द पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप्स एंड द सब ग्रुप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की, चाहे प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो थ्रू वन बाय वन. सो हमने जो है इनकी ग्रुपिंग की एंड सब ग्रुपिंग की, और उस सब ग्रुपिंग और ग्रुपिंग से जो है ये ईजी हो गया हर एक ऑर्गेनिज्म के स्टेटस को जो है स्टडी करना. ओके, तो ये एक बेसिक पर्पज है. ओके, इससे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो अरेंज किया हमने ऑर्गेनिजम्स को, इससे ये चीज़ ईजी हो गई कि हम जो है हर एक ऑर्गेनिज्म का जो है प्रॉपर स्टेटस जो है वो जान सकें. ओके, एंड इसमें जो है फर्दर हमारे बहुत सारे सिस्टम्स हैं. Okay, there are various systems of this biological classification. So we have to mention here the systems of biological classification. Okay, so systems of biological classification. Or we can say there are types of biological classification. Okay, so we have the first one is Aristotle जो system दिया था, and that system called as artificial system of biological classification. Artificial classification. Okay, next is the natural classification. And the third one is phylogenetic classification. Phylogenetic classification. And the fourth one is phenetic classification. And after that, we have two kingdom classification. Okay, we have two kingdom classification, then three kingdom, then 3, 4, okay, and 5 kingdom classification. And after 5 kingdom classification, the next is 6 kingdom classification. Okay, the next one is 6 kingdom classification, and this 6 kingdom classification also called as 3-domain system. It is called as 3-domain system. Okay, so this is overall view, or we can say that the outline system of biological classification. The first one is artificial, then natural, then phylogenetic, then phenetic, and then 2 kingdom, 3 kingdom, 4, 5, and then 6 kingdom. And the 6th kingdom is also called as 3-domain system. So
So first of all, we are just discussing here the artificial classification. This artificial classification was discovered by Aristotle, and in this classification, the habitat, these two characters are taken into consideration. Okay, and Aristotle they divided plants into shrubs, and trees. Okay, and Aristotle divided the animals into herbivores, carnivores, omnivores. Okay, all that. And in case of natural classification, so natural classification was discovered by Bentham and Hooker. Okay, and in this classification, number of characteristics are taken into consideration. They are morphological, anatomical, physiological, cytological, ecological, all these characteristics. Okay, and after that, phylogenetic system of classification. This phylogenetic system of classification was earlier discovered by Engler and Prandtl, and the later classification was discovered by Hutchinson and Tuckdegen. Okay, and this phylogenetic classification is based on what? It is based on phylogeny, or we can say that evolutionary characteristics. Okay, and this phonetic classification, it was given by Robert Sucher. Okay, and it also depends on various characteristics. After that, we have two kingdom, which was given by Carolus Linnaeus. Okay, three kingdom classification, it was given by Ernest Haeckel. और Ernest Haeckel को आप जानते होंगे, Ernest Haeckel ने एक बायोजेनेटिक लॉ भी दिया हुआ है एवोल्यूशन में, and that law called as we can say that the ontogeny recapitulates phylogeny. Okay, और उसके बाद four kingdom classification, this system was discovered by Copeland. And after that, five kingdom classification was discovered by R.H. Whittaker. Okay, and the sixth kingdom classification was given by Carl Woese. Okay, so we have to mention here the first artificial classification. So their discovery and the main characters on which this classification is based. So the first is artificial, which was given by artificial classification. Okay, so this classification was discovered by Aristotle. And all of you know that Aristotle called as father of biology, okay, father of political science, father of zoology. And in this classification, the two characters, one is habit, okay, and other is habitat. Habitat is place of living, and habit is the nature of organism. So the habit and habitat are taken into consideration. Okay, and when you're talking about the habitat, and we have mentioned here, according to habitat, animals were divided into terrestrial, aquatic, and aerial. Okay, and according to habit, plants were classified or divided into three categories, and these three categories are herbs, shrubs, and trees. Okay, so these are the three categories which was given by the Aristotle in case of plants. One is herbs, then shrubs, then trees. And in case of animals, there are again three categories: terrestrial, aquatic, and aerial. So these are the categories, or you can say that the grouping of animals or plants on the basis of artificial classification. Okay, so the next one is the natural biological classification. So we have to discuss it very soon. It is the second step of classification, named as natural classification. And Bentham and Hooker. Okay, the two scientists, taxonomists, who discovered this classification. And in this classification,
in this system of classification, not only habitat, okay, हैबिट और हैबिटेट को तो यहाँ पे इंक्लूड किया ही, बट उसके बियॉन्ड बियॉन्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ और भी कैरेक्टर जो है वो स्टडी हुए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, organisms can be divided into various categories. Okay, so we have to mention here this classification, number of characters along with habit and habitat are taken into consideration. And what are these characters? Okay, these characters are, we have to mention here, these characters are morphological, okay, anatomical, cytological, okay, physiological, and so on. Okay. And after that, the third system of classification is named as phylogenetic system of classification. Okay. The third one is phylogenetic classification. This trend of classification is very important according to competitive as well as you can say that academic point of view. Why? जो discovery is classification वो बहुत important है, because there are two discoveries. One is earlier, other is the later. Okay. So the earlier discovery of this classification goes to Engler and Prandtl. Okay. And the later discovery of this classification goes to Hutchinson and Tuckton. All are taxonomists, all are biologists, Hutchinson and Tuckton. It is very important. ये बहुत बार यह पूछा भी गया है पीएमडी के एग्जाम्स में, एम्स के एग्जाम्स में और नीट के एग्जाम्स में. ये आपने यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है. इसकी दो डिस्कवरी इसमें पूछा जाता है. सो क्या यहाँ पे जो है कैरेक्टर्स कंसीडर किए गए और ऑर्गेनिज्म को जो है कैटेगराइज किया ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, और वो कैरेक्टर थे यहाँ पे एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स. क्या थे? एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स. एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स की स्टडी को फाइलोजेनी भी बोला जाता है. इट इज आल्सो कॉल्ड एज फाइलोजेनी. ओके, सो बाय टेकिंग द एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स इनटू कंसीडरेशन, so the organisms can be categorized into various groups and the subgroups. Okay, and after that we have the 2 kingdom, 3 kingdom, 4 and 5 kingdom classification. अब क्या जरूरत पड़ी इतनी क्लासिफिकेशंस को जो है प्रपोज करने की साइंटिस्ट को, टैक्सोनॉमिस्ट को? ये इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अगर हम बात करें एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया, ओके, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए. ड्रॉबैक्स ये आ गए कि उनने जो है बहुत सारे कुछ ऐसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम ग्रुप पे रखे. इस तरह से उसने जो है एजोला और एक ऑर्गेनिज्म हाइड्रिला है ना, एजोला फरन है और हाइड्रिला जो है वो एंजियोस्पर्म है, तो दोनों एक्वेटिक है नो डाउट, तो उनको जो है सेम ग्रुप में जो है रखा गया अकॉर्डिंग टू हैबिटेट. बट दोनों का जो है एक अगर जो है स्टेटस देखा जाए तो एक जो है फरन है, एक एंजियोस्पर्म है, तो उनको हम जो है सेम ग्रुप में नहीं रख सकते. इस तरह की और भी बहुत सारी जो है वहाँ पे ऑब्जेक्शन आ गई, जिससे जो है एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था आर्टिफिशियल वो डिस्कार्ड हो गया है. इसी तरह से नेक्स्ट जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन था, बेंथम हुकर ने जो दिया था, उसमें भी जो है कुछ तरह के ड्रॉबैक्स आ गए. ठीक वही जो है ग्रुपिंग के कुछ ड्रॉबैक्स आ गए ऑर्गेनिजम्स के, जो प्रॉपर जो है शूट नहीं कर रहे थे ऑर्गेनिज्म के, और जिससे ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर जो स्टेटस था वो जो है एनालाइज नहीं हो रहा था. दैट्स व्हाई वो डिस्कार्ड हो गया. फिर फाइलोजेनेटिक की अगर हम बात करते हैं तो फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन आई, जिसमें एवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स को लेके जो है ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया बहुत सारे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, तो वो भी बाद में डिस्कार्ड हुआ क्योंकि उसमें भी जो है एक फॉसिल रिकॉर्ड चाहिए था. because fossil record is mandatory for grouping and subgrouping of organism. अब सबके फॉसिल रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, दैट्स व्हाई जो है
वो भी एक डिफिकल्ट सिस्टम हो गया, दैट्स व्हाई वो भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक, फिर आया हमारा अपना टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये किसने दिया? ओके, ये पूरा आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है इसमें ओवरऑल। ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस। और कार्लस लीनियस जो है आपको पता होना चाहिए, ये आपका जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी है। ओके, दिस पर्सन आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्लस लीनियस। ओके, क्योंकि टैक्सोनॉमी की जो फाउंडेशन है, प्लांट टैक्सोनॉमी की स्पेशली, उस फाउंडेशन को जो है इसी आदमी ने डाला। ओके, दैट्स व्हाई इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। तो कार्लस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया, इसने फाइनली, ठीक है, इसने फाइनली जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की दो किंगडम जो है क्रिएट करी। एक किंगडम थी किंगडम प्लांटिया और दूसरी थी किंगडम एनिमेलिया। क्योंकि नाम से ही पता चलता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो दिया किसने? कार्लस लीनियस ने। ओके, और अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग जो क्या क्या दो किंगडम्स जो है क्रिएट करी कार्लस लीनियस ने, वन इज किंगडम प्लांटिया एंड अदर इज किंगडम एनिमेलिया। ये दो किंगडम जो है क्रिएट करी किसने? कार्लस लीनियस ने। ओके, और इन दो किंगडम्स में अब किन ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया? यहाँ पे क्राइटेरिया रखा किसने? कार्लस लीनियस ने। वो क्राइटेरिया ये था कि जिनमें भी जो है सेल वॉल पाई जाती है, ओके, ऑल द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर सेल वॉल बियरिंग, वो सब के सब कहाँ रखे जाए? वो सब के सब किंगडम प्लांटिया में रखे जाए। और जो भी ऑर्गेनिज्म सेल वॉल लैकिंग है वो कहाँ रखे जाए? किंगडम एनिमेलिया में रखे जाए। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, यहाँ पे एक बेसिक क्राइटेरिया था कि जिनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है उन सबको रखा जाए किंगडम प्लांटिया में, अकॉर्डिंग टू कार्लस लीनियस। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो प्लांट्स तो है ही, प्लांट्स में तो सेल वॉल है ही। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट एक और ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी जो है सेल वॉल कंटेन करता है, नो डाउट। आर्की बैक्टीरिया में नहीं होती है, माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है, बट मोस्टली जो बैक्टीरिया आपका है, यू बैक्टीरिया, उसमें सेल वॉल होता है। ओके, और साथ साथ में आपका जो फंजाई है वो भी सेल वॉल कंटेन करता है। ठीक, तो ये प्लांट्स थे, बैक्टीरिया थे और फंजाई थे जिनमें सेल वॉल क्या थी? जो है फॉर्म होती थी, सेल वॉल प्रेजेंट थी। और इन तीनों ऑर्गेनिज्म को रखा किंगडम प्लांटिया में कार्लस लीनियस ने, बिकॉज़ ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स बियरिंग सेल वॉल। बट सेल वॉल तो सब में प्रेजेंट है, ये तो सिमिलरिटी है, बट डिफरेंसेस क्या है? कंपोजिशन पे डिफरेंसेस है। अगर हम बात करें प्लांट्स की सेल वॉल, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, एंड बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन पॉलीसैकेराइड व्हिच कंटेन अमीनो एसिड एंड शुगर। Okay, and this peptidoglycan is also further made up of NAG and NAM. Okay, and one is N-acetyl uramic acid, other is N-acetyl glucosamine, and further we have fungi, and the cell wall of fungi made up of chitin. It is also called as fungal cellulose. तो presence of cell wall जो है बहुत important criteria था ऑर्गेनिज्म को प्लेस करने का किंगडम प्लांटिया में। अब किंगडम एनिमेलिया की अगर बात की जाए तो एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, अब जिनमें भी सेल वॉल क्या था? एब्सेंट था, उन सब ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया कार्लस लीनियस ने किंगडम एनिमेलिया में। ओके, अब हम बात तो ये करें कि कुछ है न्यूट्रिशन को लेके ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, वो तो एक सेकेंडरी जो है चीज थी, बट जो प्राइमरी यहाँ पे था, दैट प्राइमरी इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो जो भी सेल वॉल जो है कंटेन कर रहे थे वो किंगडम प्लांटिया में इंक्लूड किया, और किंगडम एनिमेलिया में वो सब ऑर्गेनिज्म रखे गए जिनमें सेल वॉल लैकिंग थी। ओके, अब इस क्लासिफिकेशन से बहुत से ड्रॉबैक्स आ गए, क्योंकि अब ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो इंटरमीडिएट थे, है ना, जो डिबल कैरेक्टर जो है शो कर रहे थे। उसमें यूग्लिना था, उसमें आपका जो है स्लाइम मोल्ड्स थे, उसके बाद जो है उसके लाइकन्स थे, है ना, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे ना, स्पॉन्जेस थे। तो ये सब ऑर्गेनिज्म जो है ये डिस्प्यूटेड हो गए, इनका जो स्टेटस था वो प्रॉपर जो है बैठ नहीं रहा था, और उनको जो है या बैक्टीरिया ही था या फंजाई है, फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है, सेल वॉल को कंटेन कर रहा है, तो ये तो एटोट्रॉपिक होना चाहिए फिर। बट ये क्या होता है आपका? प्लांट एटोट्रॉपिक है, बैक्टीरिया आपका एटोट्रॉपिक भी होता है, हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। एटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक भी होता है, कीमोसिंथेटिक भी होता है ना, और फिर जो है हेटेरोट्रॉपिक में सेप्रोट्रॉपिक भी होता है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, तो डाइवर्स है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है क्या है? डाइवर्स है। तो अगर हम फंजाई की बात करेंगे तो हेटेरोट्रॉपिक है, वो भी जो है एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो है फूड को एब्जॉर्ब करता है ना, एंजाइम पहले जो है स्क्रीट करेगा, वो एंजाइम जो है उस पर्टिकुलर जो है जो मीडियम जिस पे भी जो है डिपेंड करेगा फंजाई, उस पे जाके वो एंजाइम जो है उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेगी, और फिर जो है वो
डाइजेस्टिव जो मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करेगा फंजाई। तो कहीं ना कहीं जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है सब में डाइवर्स था। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे इन ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम प्लांटिया में नहीं रख सकते थे, क्योंकि वहां पे जो है बहुत सारे डिस्प्यूट आ गए, है ना। कुछ ऑटोट्रॉपिक है, कुछ हेटरोट्रॉपिक है, कुछ ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक है, कुछ फोटोसिंथेटिक है, और कुछ आपके जो है हेटरोट्रॉपिक में भी पैरासिटिक है, सेप्रोजोइक है ना, होलोफिटिक है। तो ये सब जो है जो वैरायटीज आ गई यहाँ पे, जो है एक डाइवर्सिफिकेशन आ गई मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर। तो यहाँ पे जो है ये बहुत सारे ड्रॉबैक्स बन गए, ऑब्जेक्शंस बन गई, जिनको प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई को जो है प्लांट में बिल्कुल जो है प्लेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम प्लेस कर सकते हैं तो वो खाली प्लांट्स को कर सकते हैं, उसमें आपके एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। ओके, उसके बाद बैक्टीरिया के लिए जो अलग से जो है किंगडम। फिर जो है नेक्स्ट जब ये ऑब्जेक्शंस यहाँ से आ गई, बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए, and in order to clear all these objections, all these drawbacks, the next kingdom named as three kingdom classification. Okay, यहाँ से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके साथ जो है अन्याय हुआ, है ना, इनजस्टिस हुआ, जिनका प्रॉपर जो है यहाँ पे जो है वो डिजर्व नहीं करते थे, न किंगडम प्लांटिया में डिजर्व करते थे और न ही वो किंगडम एनिमल में डिजर्व करते थे। इसीलिए जो है नेक्स्ट एक किंगडम और यहाँ पे प्रपोज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस थ्री किंगडम को किसने जो है डिस्कवर किया, वो प्रपोज दिस क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन वाज प्रपोनेड बाय अर्नेस्ट हैकेल। ओके, अर्नेस्ट का नाम सुना होगा आपने, ये बहुत जो है फेमस पर्सनालिटी थी अपने जो है टाइम में, क्योंकि इन्होंने जो है एक और बायोजेनेटिक जो है लॉ दिया था, ओके, एवोल्यूशन में दिया था। वो लॉ क्या था, मैं इसका लिख देता हूँ उसको, दैट इज ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट्स फाइलोजेनी, है ना। इससे जो है ये बहुत फेमस था। ओके, और इसके साथ साथ जो है ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट, ये भी आपके कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी। ठीक है, ये कभी कभार पूछा जाता है कि किसने जो है आइडिया दिया था। तो ये आइडिया जो बायोजेनेटिक लॉ था, ओके, ये दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। बाद में इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है वो यहाँ पे हम जो है मेंशन नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में मेंशन करेंगे। ओके, तो अर्नेस्ट हैकेल ने जो है यहाँ पे एक और सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का दिया, दैट इज कॉल्ड एज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में आपकी कौन कौन सी आती है, किंगडम प्लांटिया तो आ ही जाएगी, जो ऑलरेडी कार्लोस ने दे रखी थी, किंगडम प्लांटिया, और किंगडम एनिमेलिया भी ऑलरेडी इसमें आ जाएगी, किंगडम एनिमेलिया जो ऑलरेडी है कार्लोस ने दे चुका था। और यहाँ पे जो नई किंगडम, थर्ड किंगडम क्रिएट करी अर्नेस्ट हैकेल ने, वो किंगडम कौन सी थी, दैट किंगडम इज किंगडम मोनेरा, दैट इज किंगडम मोनेरा। और ये किंगडम मोनेरा में उसने जो है किन ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया, और यहाँ पे प्लेस किया बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया बिल्कुल यूनिक ऑर्गेनिज्म था। और आपको ये भी बताना चलूंगी, जो फर्स्ट या जो है या हम कहेंगे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे जो है था, वो बैक्टीरिया था। ये बिलियंस ऑफ ईयर तक इसे जो है राज किया। उसके बाद बाकी जो आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, यूकैरियोटिक है तो या बाकी मल्टीसेल, वो बाद में आए, बट कुछ बिलियन ऑफ ईयर्स तक जो है बैक्टीरिया ही जो है राज करता रहा अर्थ पे। ओके, तो ये फर्स्ट या कहिए प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे था, कौन, बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया का बहुत डाइवर्सिफिकेशन था। ओके, बहुत जो है स्पीशीज थी बैक्टीरिया की, इसमें भी बहुत सारे जो है कैटेगरीज थी, आर्गी बैक्टीरिया थे, यू बैक्टीरिया थे, और फिर जो है आर्गी बैक्टीरिया में फर्दर आपके जो है हेलोफाइल्स थे और थर्मोसिटोफाइल्स थे ना, मिथेनोजेंस थे, और फिर यू बैक्टीरिया में फर्दर आपके कुछ फोटोसिंथेटिक थे, कुछ हेटरोट्रॉपिक थे, और वहां पे कुछ पैरासिटिक थे, कुछ सेप्रोट्रॉपिक थे। तो बहुत डाइवर्स था जो है नंबर बैक्टीरिया का। दैट्स व्हाई बैक्टीरिया को प्लेस किया अर्नेस्ट हैकेल ने एक नई किंगडम क्रिएट करके, दैट इज किंगडम मोनेरा। ओके, और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक और किंगडम पे, दैट इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो है दैट वाज डिस्कवर्ड बाय